So what exactly parenting is? We all know कि baby हुआ और आप parent बन गए. It isn't exactly like it. Like once you are parent, with parenting, by becoming parent, you have multiple responsibilities start coming up. And most of the parents, they think कि बच्चा हो गया पालते जाएंगे उसको. But I must congratulate all of you who have joined today's session about teenagers, because you are eager to know and you are eager to change. Like Dr. Ratna has already been saying, being non-judgmental, we are very, very judgmental. So we, all of us, need to be non-judgmental with everybody, not only with teenagers, but with everybody. So what is the biggest goal of parenting? The biggest goal of parenting is teaching our values to our children, teaching our cultural beliefs and the family beliefs to a teenager, or so that they become a physically and emotionally mature, fully functional adult. This is what the biggest goal of parenting is. So though it is tough, but undoubtedly, parenting is one of the most rewarding jobs that we could ever dream of. जब हम अपने बच्चे को बड़ा और सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं ना, तो वो जो सेटिस्फैक्शन आता है, वो सेटिस्फैक्शन is unimaginable. Only those who have their kids who are youth now, they can understand all these things. So in next 20-25 minutes, I'll be talking about various parenting styles, what are why disciplining is required or why rules are required, what are the risky behaviors, and what about something about peer pressure. We all keep on hearing about these things, कि peer pressure में बच्चे ऐसा करते हैं. So what exactly peer pressure means? And does parental stress affect our growing teenager? Then importance of life skills. I'll just touch life skills, which are very important part of every adolescent talk. What is the importance of sexuality education? Is it required, or does it provokes more like to indulge in actual sexual act? And what is importance of our Indian culture, that is yoga and mindfulness? So this is how adolescent parenting encompasses all these things. So healthy parenting means it nurtures healthy mind also. So a healthy, balanced and peaceful parenting helps in age-appropriate development of their, starting from the infant to children to adolescent. एक न्यूबॉर्न से 1 साल तक का बच्चा, फिर बच्चे छोटे 3 से 10 साल तक के बच्चे, and then adolescent 10 to 19 years. और क्यों हम पेरेंटिंग पे बात करना चाहते हैं? बिकॉज नियरली 40% ऑफ एडोलेसेंट एडल्ट ऑनसेट साइकोटिक डिसऑर्डर्स, साइकेट्रिक इलनेस जो एडल्ट्स में होती है, दे स्टार्ट डेवलपिंग in the age as early as 4 years to 14 years. So that is why parenting plays very important role. Then it also helps through, if you learn about parenting, it will also help us to detect flag signs of emotional disorder, depression, anxiety, which Dr. Pyali is going to highlight. And then what exactly parenting means? It means giving them unconditional love, support, and age-appropriate behavior. So there are basically 4 types of parenting, out of which the first one is permissive. इसमें बच्चा जो होता है वो राजा होता है. पेरेंट्स, अरे उसने केक मांगा, उसको केक दे दिया, उसने चॉकलेट मांगी, उसको चॉकलेट दे दी, दादा ने उसको बोला कि कुरकुरे खाने, बच्चे ने बोला तो कुरकुरे खिला दिए. एक दिन में 4, 5, 10 n number. So there's limited or no rule at home, and everybody loves the child so much that it leads to poor development. कि बच्चे को कपड़े भी खुद नहीं पहनने देना, उसको उठा के अपन ने बिठा दिया. And similarly, this childhood parenting continues till adolescent. तो जब तक बच्चा बड़ा होता है तो उसको क्योंकि लिमिट कोई गाइडेंस नहीं मिली होती, उसको जो चाहता है वो मिलता है, राजा जैसे होता है. तो व्हाट हैपेंस, उसको हर छोटी बात पे अगर कोई चीज नहीं मिली तो वो टैंट्रम शो करेगा या लोगों पे गुस्सा करेगा, चीजें फेंकेगा. और क्योंकि सब कुछ दूसरे लोग उसके लिए करते रहे तो उसका डिसीजन मेकिंग स्किल्स वुड बी वेरी पुअर. जब वो अकेला कहीं फंसेगा
तो ही वोंट बी एबल टू डिसाइड, क्योंकि उसको तो आदत नहीं है, हर कुछ उसका काम दूसरे लोग कर रहे हैं. एंड मोरओवर सोशल स्किल्स विल बी पुअर, लाइक किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे बिहेव करना है, क्योंकि वो तो राजा था, जो बोलता है वो होता है. सो दिस वॉज परमिसिव पेरेंटिंग, जहाँ पे कोई रूल्स नहीं है और बहुत ज्यादा लाड और प्यार मिला है, and there has not been any guidance. So this is not a good style of parenting. Then is neglectful parenting. Neglectful parenting भी कुछ कुछ permissive parenting जैसी होती है, but in neglectful parenting warmth नहीं होता, उतना ज्यादा लाड नहीं होता. Parents, they are busy with their work, communication बहुत कम है. Mostly these parents, they are detached from children and they don't have any expectation, क्योंकि बच्चे से बात ही नहीं कर रहे, उसको कुछ गाइड ही नहीं कर रहे, तो एक्सपेक्ट क्या करेंगे. You can see it is well depicted in these pictures. So what is the outcome of neglectful parenting? Again, बच्चे को पता है कि मैं जब तक चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू हियर माय वॉइस. आप देख रहे होंगे दोनों पेरेंट्स मोबाइल पे हैं, तो इफ द चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग, ओनली देन पेरेंट्स विल गिव सम अटेंशन टू द चाइल्ड. Then again, decision making skills are poor. These children, they have low self esteem, क्योंकि कभी कुछ प्यार मिला ही नहीं, तो उसका self esteem या self image जो है वो confidence सब poor है. Social skills भी इनके poor हैं और self control तो poor है ही, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा जब तक चिल्ला नहीं रहे, तो he'll keep on crying, he'll keep on shouting, he'll show aggressive things. So this is what also, it is also called uninvolved parenting. Then is authoritarian parenting. हमने बहुत पेरेंट्स को देखा होगा, उठो उधर बैठ जाओ, चलो स्कूल चलो, चलो ये बैडमिंटन का गेम अपने को ज्वाइन करना है. मतलब they won't say, ask the child, they won't ask the adolescent कि आपको क्या पसंद है, what do you like, you have to do what I am saying. So rules तो है घर में, but they are not explained. Children, they have to follow those rules. So there's less warmth, मतलब लाड प्यार नहीं है, सिर्फ rules है. And these parents, they have very high expectation कि मेरे बच्चे को तो 95% मार्क्स ही लाने चाहिए, कोई flexibility नहीं है. They have to study and they have to play such and such games because I want my child to be perfect. So outcome में है होता है, these children, they are quite high achiever, क्योंकि parents बहुत time भी दे रहे हैं, खाली order नहीं कर रहे, they are giving them quite a bit of attention also. But इन बच्चों का happiness score is little lower. Children may be obedient, but जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, they'll start rebelling, they'll be irritable and they'll be little frustrated कि मेरी बात तो कोई सुनता नहीं है. Again, frequent tantrums होंगे, and most importantly, ये बच्चे झूठ बहुत बोलेंगे because they have to hide things from their parents. And these children, again, they have poor self-esteem. सेल्फ एस्टीम मतलब उनकी अपनी जो सेल्फ इमेज है वो पुअर है, क्योंकि वो तो फॉलो कर रहे हैं पेरेंट्स को, उनका कोई से नहीं है. सो दिस इज अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिक्टेरियल पेरेंटिंग. नाउ द लास्ट वन इज अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग. यू कैन इजीली सी कि बच्चा और फादर, both of them are quite happy. Father is looking into the eyes of the child and talking to him. So this is a reasonable, there is a reasonable and nurturing attitude. Children, they grow in a non-threatening environment. Parents को भी rule बताएंगे तो बनाएंगे तो they'll ask कि these are the rules and why children has to follow those rules. So there are clear set of rules. So what is the outcome? Such children, they are good in communication, they are good in decision making skill, क्योंकि घर में जो भी rules बन रहे हैं वो उनसे बात करके बन रहे हैं, तो even they are involved in decision making. Then social skills are quite good, and these children, they are quite happy and well adjusted. Their emotional quotient and adversity quotient is quite high. So these children, they are quite high achievers, and this sort of parenting is also called democratic and balanced. So by now you must have understood that this is the best sort of parenting, and most of us, we follow a mixed sort of parenting कि कभी हम authoritarian बनते, कभी हम authoritative बनते, कभी neglectful बनते. तो mixed sort of parenting is also good, but not the neglectful parenting or passive parenting. So why do we need discipline? जब भी word discipline आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कोई आर्मी की का
पिक्चर दिमाग में आता है, या अगर हम किसी पर्सन की बात करें तो हम गांधी जी को याद करते हैं, या अगर प्रेजेंट सिनेरियो में करें तो हम बहुत सारे क्रिकेटर्स को समझ सकते हैं कि दे आर क्वाइट डिसिप्लिन्ड। इवन आमिर खान के बारे में भी बोलते हैं ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन। तो वी कैन लिव इमेजिन मेनी पीपल हु आर वेल डिसिप्लिन्ड। सो व्हाट डज डिसिप्लिनिंग मीन्स? और दूसरी तरफ whenever we talk about disciplining our children, we'll always think कि एक थप्पड़ मारो डिसिप्लिन, उसको डिसिप्लिन करना है ना। नो, डिसिप्लिनिंग इज नॉट पनिशिंग. Disciplining basically teaches teenagers to manage their emotions. So it is said that the aim of discipline is to encourage freedom and to develop their own self-control. So we have to understand that disciplining is not punishing. And what happens अगर हम बच्चों को मारते हैं तो हम उनको क्या सिखाते हैं? We teach them many unhealthy lessons. We teach them कि जिसको हम प्यार करते हैं उसको हम मार सकते हैं, और physical punishment or giving pain to the person whom you love, that is justifiable. So it is not like that. And बार बार अगर हम मारते हैं या बार बार बच्चे पे चिल्लाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे या तो बच्चा रिबेल करने लगता है, या वो अपने होल में घुस जाता है, या फिर वो थोड़ा बड़ा होगा तो वो रिवेंज लेगा. तो फिजिकल पनिशमेंट इसीलिए स्कूल्स में भी बिल्कुल बंद कर दी है गवर्नमेंट ने भी. एंड इट शुड नॉट हैपन एट होम आल्सो. फिजिकल पनिशमेंट किसी के साथ भी फिजिकली हार्श नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट गिव्स अ रॉन्ग मैसेज टू योर चिल्ड्रन. सो फिजिकल पनिशमेंट इज अ इनइफेक्टिव वे टू डिसिप्लिन. एज आई सेड, डिसिप्लिन का हमारा मतलब होना चाहिए टू एनकरेज फ्रीडम एंड टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल. So instead of focusing हम why, we should understand their needs. अगर बच्चा रो रहा है या एडोलेसेंट चिल्ला रहा है तो लेट अस अंडरस्टैंड कि स्कूल से आया है, थक के आया है, या तो स्कूल में इसके फ्रेंड से कुछ लड़ाई हुई है, या फिर इसको भूख लगी है. तो अंडरस्टैंड what is their need, whether they are hungry, whether they are sleepy, or they have a fight with their colleague in school. We need to understand the need. And then अगर आपसे बच्चा एडोलेसेंट बदतमीजी कर रहा है तो यू कैन ऑलवेज से दैट आई नो यू आर टायर्ड, या आई नो यू आर शाउटिंग, देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड. लेट अस स्टॉप डिस्कसिंग राइट नाउ, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. बट बिफोर दैट we ourselves have to behave like that. जब मुझे गुस्सा आए तो मुझे क्या करना है, मुझे यही बोलना है कि अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझसे बिल्कुल बात मत करो, मैं थोड़ी देर में शांत होके आऊंगी, फिर आपसे बात करूंगी. When the parent will talk to their child like that, the child will start understanding, okay, this is the way to show your anger, or this is the way to manage your stress. The child will start understanding it. So validate the need, उसको क्या जरूरत है, reject their weakness and give them responsibilities. By giving them responsibilities, we will definitely teach them various life skills, which I'm going to talk in the later slides. So we have to understand why the child is misbehaving, and for that misbehavior, we need to give them some time to reconcile themselves. हम लोग अधिकतर बोलते हैं अगर बच्चा कुछ गलत बात बोलता है या चिल्ला रहा होता है तो हम बोलते हैं तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो, तुम, मोना एक गंदी लड़की है, मोना ने खाना नहीं खाया, मोना एक गंदी लड़की है. बट उससे हम उसकी पूरी पर्सनालिटी को गंदा बोल रहे हैं. इट इज नॉट लाइक दैट. यू स्टिल लव योर चाइल्ड, यू स्टिल टीनेजर, बट don't say that Mona is a bad girl. Say you're this behavior, not eating properly, you're not eating your vegetables, this is bad. So keep on pointing towards a particular behavior and don't say that the whole child or whole person is bad. And instead of focusing on bad behavior, कई बच्चे होते हैं, कई teenagers होते हैं जिनको बहुत बार आपने समझा दिया कि आप थोड़ी देर बाद बात करो, बट यस, दे विल कीप ऑन फाइटिंग. हर चीज में फाइट करेंगे, चीजें फैला के रखेंगे, रैश ड्राइविंग करेंगे. तो डोंट फोकस
don't land into power fight. अगर बहुत कंटिन्यूसली बैड बिहेवियर कर रहा है तो थोड़ा सा उसको बिहेवियर पे फोकस करने को स्टॉप करते हैं एंड फोकस ऑन वैल्यूज विच यू वांट टू टीच योर चाइल्ड. हमको अपने आप को ही डिस्ट्रैक्ट करना है. फॉर अस मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर respecting others, being honest, being open while communicating, being kind, and showing your integrity. When the child develops these values, the good behavior will automatically flow off. So do communicate when they are right, because your approval means a lot. Mostly हम लोगों की आदत होती है कि बच्चा जब गलत काम करता है तो हम तो बहुत पॉइंट आउट करते हैं. बट व्हेन द चाइल्ड डज समथिंग गुड वी डोंट अप्रिशिएट. हम तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. गेस्ट आए, बच्चे अपने साथ बैठा हुए है और बच्चा अंदर गया और पानी लेके आ गया. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम गेस्ट के सामने उसको बहुत प्रेज करने लगे. But whenever the child is alone or whenever you two are along with each other, at that time you can say ki I was very happy, like you took the responsibility and you brought whatever for all of them. So as Dr. Ratna was saying that these children, they are involved in risky behavior. So why they are involved in risky behavior? Because teenage brain is growing. And Dr. Pyali will be telling us different stages of adolescent development. So risk taking is important part of their development. Adolescent का basic काम क्या है कि एक छोटे बच्चे से एक adult बनने के बीच की phase है. तो during this phase they are forming their identity. और अपनी आइडेंटिटी बनाते वक्त दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम पेरेंट्स एंड ड्यूरिंग दिस फेज देयर रिवॉर्ड सेंटर, उनको सब कुछ बहुत खुशी देने वाला जो उनका सेंटर है जिसको एमिगडाला बोलते हैं, ये सबसे पहले डेवलप होता है. सोचने समझने की शक्ति बाद में डेवलप होती है, रिवॉर्ड सेंटर बहुत जल्दी डेवलप होता है. सो दैट इज वाई वो हर छोटी चीज से बहुत खुश होते हैं, हर छोटी चीज से बहुत डिस्टर्ब होते हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम होती है. तो व्हाई डू दे टेक रिस्की बिहेवियर? क्योंकि उनको थ्रिल जो होता है ना उसमें उनको बहुत मजा आता है. एंड इट इज सेड कि जब उनके पियर्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, तो उनका रिस्की बिहेवियर जो होता है वो डबल हो जाता है. अगर एक एडोलेसेंट जो 18 इयर्स का है हु इज ऑथराइज्ड टू ड्राइव अ कार, अगर वो अकेला ड्राइव करेगा तो वो 70-80 पे जाएगा. पर अगर उनके फ्रेंड्स साथ में रहेंगे तो वो 100-120 की स्पीड पे जाएंगे. बिकॉज presence of fear, it increases the risk. More reward, they want to prove that I am better, like I can also drive at such a high pace. So risk taking behavior like experimenting with alcohol, rash driving, involving in unprotected sex, these are all negative risk taking behaviors which we normally talk about. But इनकी जो थ्रिल वाली जो सेंसेशन है इसको हम पॉजिटिव रिस्क की बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय गेटिंग इन्वॉल्विंग देम इन स्पोर्ट्स. की रॉक क्लाइंबिंग में चले जाओ या स्कूल स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन कर लो या वॉलंटियर करो एंड यू कैन एजुकेट अदर्स. सो अगर हम उनको नेगेटिव, अगर हम पॉजिटिव रिस्क टेकिंग बिहेवियर की तरफ उनको देंगे, उनको थ्रिल मिलता रहेगा, तो दे वोंट लैंड इनटू नेगेटिव रिस्की बिहेवियर. मोरओवर adolescent, they are more happy when they are with their peers. So before their peers take the lead, उससे पहले अगर पेरेंट्स की एडोलेसेंट के साथ कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो बच्चे फ्रेंड्स की तो सुनेंगे, बट स्टिल इन द बैक ऑफ माइंड दे विल हैव कि हमारी वैल्यूज क्या हैं एंड वी नीड टू फॉलो दोज वैल्यूज. सो द 3 components of maintaining positive parental influence on a teenager are support healthy friendships. उनके फ्रेंड्स के साथ उनकी फ्रेंडशिप को अपने को सपोर्ट करना है. सो कॉल देयर फ्रेंड्स एट होम so that you got to know how their friends are or who their friends are. Model responsible behavior and keep an open judgment free family environment. पेरेंटल स्ट्रेस जो है वो भी बच्चों को के डेवलपमेंट को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जब पेरेंट्स के खुद के स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो बच्चों को ट्रॉमेटाइज करते हैं. एंड इट इज एंटायरली डिफरेंट टॉपिक. आई जस्ट वांटेड टू टच इट कि पेरेंटल स्ट्रेस जो होता है बच्चों को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है. बच्चे उसको असेस करते हैं या दे कैन अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हैं, तो बच्चे छुपते जाते हैं, उनके खुद के अपनी रेजिलियंस कम होती जाती है. एंड
the biggest thing is when parents, they make mistake, and if they apologize, the teenager also start understanding that it is okay to make mistakes, but apologizing and redoing things, or ठीक से उनको हम वापस ठीक करेंगे, तो they are always good. So it is good for parents to accept that they have done something, parents themselves have done something wrong, and it is good to teach them to mend relation. कोई अगर दो friends के बीच में भी relations खराब हो गए, तो if the child has that habit of saying sorry, so they can say sorry and mend their relationship. Now something about life skills. जैसे हम बच्चों को बहुत पढ़ाई कराते हैं कि भाई एग्जाम है, उसके लिए पूरा पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, है ना, बट हम उनको लाइफ के लिए हम प्रिपेयर नहीं करते. लाइफ जो रोज हमसे इम्तिहान लेती है, या रोज जो जिसमें हमारी लाइफ का एग्जाम देते हैं, उसके लिए वी डोंट टीच आवर चिल्ड्रन. बट इट इज एसेंशियल दैट WHO also says that there are 10 essential life skills which every child should have. Like social skills, thinking skills, emotional skills, जैसे इसमें मेन में डिवाइड किया है, बट 10 जो है उसमें कम्युनिकेशन स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानना भी बहुत जरूरी है, कोपिंग विद स्ट्रेस एंड कोपिंग विद इमोशन. तो ये स्टोरी मैं प्याली को, अभी हम लोग मिले थे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो आई वाज टॉकिंग टू हर, और बात करते करते हम दोनों सो गए. तो ये स्टोरी आज प्याली के लिए ही है और आप सबके लिए भी है. तो लाइफ स्किल, इस छोटे से खरगोश ने शेर को मार दिया, जो एक थोड़ा सा अनइमेजिनेबल सा लगता है अगर हम स्टोरी सुनते हैं तो, बट इस खरगोश ने सारे लाइफ स्किल्स यूज किए लायन को मारने के लिए. तो कैसे, जब खरगोश की बारी आई तो ये डरा नहीं, इसने सोचना शुरू किया कि मैं शेर को कैसे मार सकता हूँ. ताकत में तो वो इतना ऊपर है मुझसे कि मैं उसको नहीं मार सकता. तो यहाँ पे इसने क्रिटिकल थिंकिंग को सोचा, अपने दिमाग से सोचा कि मैं इसको कैसे, मैं इसको मारने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. पर उससे पहले इसको हिम्मत रखनी बहुत इम्पोर्टेंट थी, कि ये सेल्फ अवेयर था अपनी चीजों के लिए, अपनी शॉर्टकमिंग्स के लिए, कि मैं छोटा हूँ, मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ, बट ये सेल्फ अवेयर था कि मैं अपना दिमाग चलाऊंगा, मैं कुछ क्रिटिकल थिंक करूंगा या कुछ क्रिएटिवली थिंक करूंगा, तो आई विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ होल ऑफ द फॉरेस्ट. की रोज एक जानवर जाता, शेर उसको खाता है. तो ये टाइम से नहीं पहुंचा तो शेर को गुस्सा आता गया. और जब इंसान गुस्से में होता है, या जब एक लिविंग बीइंग गुस्से में होता है, तो उसकी थिंकिंग कैपेसिटी एकदम कम हो जाती, क्लाउडिंग होने लगता है. तो जैसे ही खरगोश पहुंचा तो शेर तो एकदम आग बबूला बैठा था. तो इससे बोला कि हुजूर हुजूर मुझे माफ करिए, मैं लेट हो गया क्योंकि मुझे रास्ते में दूसरा शेर मिल गया. अब शेर तो सोचने समझने की शक्ति तो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि भूख भी लग रही थी उसको बहुत जोर से. और जहां उसने सुना कि दूसरा शेर आ गया है, तो उसने सोचा मेरे राज्य में ये दूसरा शेर कहाँ से आ गया. तो वो बाउंड्रीज वाली लड़ाई उसकी हो गई. तो उसने कहा चलो मुझे दिखाओ. और खरगोश ने क्रिटिकली थिंक करके, क्रिएटिवली थिंक करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को यूज किया, और उसने मतलब कुएं के अंदर देखिए आप, वहां पे शेर है. और इस तरह से जब उसने बोला उसको, तो शेर उसके अंदर कूद गया. तो खरगोश ने क्या क्या किया, उसको स्ट्रेस था कि वो आज मरने वाला है, उसको इमोशन थी कि बहुत डर लग रहा है, इतना बड़े उसके पास जा रहा हूँ, पता नहीं मेरी जो मैं करने वाला हूँ वो मैं करेक्ट कर पाऊंगा कि नहीं. और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे थे, तभी तो उसकी बात शेर इतने अच्छे से समझ गया. तो लाइफ स्किल्स जो होते हैं, 10 लाइफ स्किल्स हैं जो हमारे रोज के काम आते हैं. कभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कभी स्ट्रेस से कोप अप करते हैं, कभी इमोशन से कोप अप करते हैं. सो कम्युनिकेशन स्किल जो है, ये इंटरपर्सनल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ऑलवेज यूज अ लैंग्वेज ऑफ रिस्पेक्ट, गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन. जब हम एडोलेसेंट से बात करते हैं ना, तो हम 3-4 बातें इकट्ठे बोल देते हैं कि रौनक यहाँ बैठो, थोड़ी देर में खाना खा लेना, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, तो किसी का फोन आएगा तो उसको ये जवाब दे देना. तो एडोलेसेंट, दे कैन नॉट प्रोसेस टू मेनी
इंस्ट्रक्शंस एट ए टाइम, तो एक या दो इंस्ट्रक्शन उनको दो, कीप द योर कमांड शॉर्ट एंड सिंपल एंड यूज आई स्टेटमेंट। जब कुछ बच्चे से बहस हो रही हो तो अपन ये बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारी सिचुएशन में होता तो मैं ऐसा करता, मैं इस तरह से अपने फ्रेंड से बात करता, मैं उसको टाइम देता कि चलो आप थोड़े दिन बाद अपन बात करेंगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम ऐसा करो विच साउंड्स टू बी एक्यूजिंग। उसमें बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे मुझसे उंगली कर रहे हैं ये। Now moving to comprehensive sexuality education. So what is comprehensive sexuality education? According to UNESCO, it is age appropriate, culturally relevant. मतलब जो आपका culture जिस education को allow करता है, इस तरह से अपने को बात करनी चाहिए. And it is an approach to teaching about sexuality and relationship by providing scientifically accurate, रियलिस्टिक, नॉन जजमेंटल इंफॉर्मेशन। इसमें बोलते हैं कि आप बच्चे से जब बात करो तो आप टीचर, पेरेंट, they themselves have to be very comfortable while talking about sexuality. Basically हम जहाँ sexuality वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ सेक्स डेवलप होता है, ध्यान में आता है हमारे। हम यही सोचते हैं कि अरे सेक्सुअलिटी, अच्छा वो तो लड़का लड़की किस कर रहे होंगे, लड़का लड़की एक दूसरे से फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे होंगे, बट नो, sexuality is part of our own personality, the way we talk, the way we interact with people of other genders, my own sexual preferences, this is all part of sexuality. So it is not the act of sex, it is the as a person as a whole. And what are the various topics with comprehensive sexuality education? Includes it is sexual and relationship diversity, online safety and digital citizenship, and sexual pleasure and well-being. So you can clearly see from this picture that would sex education encourage our children to have sex? They'll say no. It is said, it has been proven repeatedly that sexuality education does not lead to early or increased sexual activity. एक्चुअली जब हम बच्चों को एजुकेट करते तो हम बेसिकली जैसे हम लाइफ स्किल्स से उनको इक्विप करना चाह रहे थे, इसी तरह सेक्सुअलिटी एजुकेशन से भी वी आर इक्विपिंग देम कि हमको कब क्या चॉइस लेनी है, हमको अपनी बॉडी के बारे में या अपने अपने इमोशंस के बारे में वी हैव टू बी सेल्फ अवेयर. एंड व्हाई दिस सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज रिक्वायर्ड? Because 1 in 5 girls and 1 in 20 boys, they are victim of child sexual abuse. And 3 out of 4, this is a big number, adolescents have been sexually assaulted or victimized by someone who is very well known to them or someone who stays nearby to them. So that is why we need to teach them, we need to equip them earlier so that they understand the boundaries, they understand ki what is good touch, what is bad touch, and they can tell all these things to their parent. अगर पेरेंट पहले से बात कर रहे होंगे तभी तो बच्चा खुलेगा, नहीं तो जो प्रिपरेटर है वो तो बच्चों को इतना डरा देता है या बोलता है ये अपने दोनों के बीच का सीक्रेट है, किसी को नहीं बताना. But if parent have already taught their child कि no one has right to touch your body, to touch your private parts, what are private parts, then the child will definitely, they'll remember. I remember one of my cousin sister's daughter, उसका मौसा जी जो है वैसे चलते फिरते उन्होंने उसको बटक्स पे मारा, स्लैप किया. इट वाज जस्ट अ कैजुअल थिंग, आई डोंट थिंक सो कि उनका कुछ इंटेंशन था, बट द गर्ल इमीडिएटली वेंट टू हर मदर एंड सेड कि मुझे मौसा जी ने बटक्स पे टच किया, मतलब उन्होंने बटक्स पे मुझे पैट किया. तो मौसी केम एंड शी सेड कि नो जिया जी, यू डोंट हैव टू डू लाइक दिस बिकॉज for her, this is her private part which has not to be touched by anybody. So this is what we should, if we are open to communication, only then the children will be open to tell us about all these things, because we know that 3 out of 4 child has been abused physically or emotionally. And sexuality education also
tells us to build healthy relationship, कि हम अपनी बात अगर अच्छे से बोल सकेंगे तो डेफिनेटली हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, तो रिलेशनशिप वुड बी हेल्दियर. सो बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप में टेक टाइम, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन पर्सनल ग्रोथ. जब लड़का लड़की दोनों मिल रहे हैं और कोई रिलेशनशिप में है, द गर्ल एज वेल एज बॉय, बोथ ऑफ देम शुड नो कि देयर पर्सनल ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट. हमको दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन पर्सनल ग्रोथ. Build relationship on mutual respect and trust, and prioritize communication aligning to your values and emotional stability. So, providing sex education at various stages of puberty with various aspects of sexuality. 10 साल के बच्चे से we'll be talking in a different manner. 14 years के बच्चे से different तरीके से बात करेंगे. 17-year adolescent जो है उसको बहुत कुछ उससे clearly बात कर सकते हैं. So talk to them on a scientific basis about menstrual cycle in girls, both with boys and girls. हमारे घर इंडियन कल्चर में यूजुअली मेंस्ट्रुएशन को बहुत दबाया छुपाया जाता है. मेरे क्लिनिक पे जो भी गर्ल्स आती हैं उनके फादर्स यूजुअली बाहर बैठते हैं. आई कॉल हिम इनसाइड एंड आई से कि आज अगर बच्चा आपके सामने अपनी मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स कि मुझे पेट दर्द हो रहा है या मुझे ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, अगर आज वो आपके सामने खुल के बात नहीं करेगी, तो कल जब बाहर जाएगी, हॉस्टल में पढ़ेगी या कहीं वर्किंग प्लेस पे होगी और उसको कुछ हेल्प की जरूरत होगी तो वो हेजिटेट करेगी. आज अगर वो आपसे खुल जाएगी तो कल को वो अपने मेल कुलीग से भी खुल जाएगी, सो दैट शी वुड बी एबल टू कम्युनिकेट कि भाई मुझे बहुत पेट दुख रहा है, आई वोंट बी एबल टू वर्क, या मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आई इमीडिएटली नीड some assistance. So parents have to get open about it. And even girls should be taught about night falls and ejaculation in boys. They should be taught, both boys and girls should be taught about it. So most importantly, sex education हमारे बच्चों की safety के लिए है. तो stress on the need of protection. We must tell them that you need to protect yourself at any cost. And through sex education, they learn to take decision which is well informed about their body, about their anatomy, about their sexual health. It also prevents them from various sexually transmitted diseases, unintended pregnancy, and they understand कि contraception क्या होता है या safe sexual practices क्या होती हैं. या हम public forum पे नहीं बात कर सकेंगे, तो भी one to one तो we can definitely talk about it. And we mostly talk about sexually transmitted diseases, unintended pregnancy, but हम sexual pleasures के बारे में नहीं बताते, which has also to be taught, कि love making has to be taught to these children. Now, sex education helps them in developing their emotional well-being. अगर बच्चे अपनी बाउंड्रीज समझेंगे तो इमोशनली स्टेबल रहेंगे कि मुझे पता है कि मैं कोई ऐसा एक्ट नहीं करूं जो मेरे वैल्यूज के अगेंस्ट है. दूसरा, अपनी बॉडी को समझेंगे तो उनका सेल्फ एस्टीम अपने आप ही बढ़ेगा, और सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा तो वो कॉन्फिडेंस से अपनी बात को नो कह सकते हैं कि दीज आर माय बाउंड्रीज, नो वन शुड क्रॉस दीज बाउंड्रीज. Red flag signs of mental disorders. Dr. Pyali is going to talk about it. That is why I'm going to just skip about it. Only thing is, all the symptoms, they need to be persistent for more than 2 weeks. बच्चे में कोई भी abnormal symptom अगर 15 दिन से ज्यादा हमको फील हो रहा है कि हमारा बच्चा abnormal है, तो you must consult a professional or you must consult anybody whom you trust कि मेरे बच्चे में कुछ problem है which has to be treated. Now about yoga and mindfulness. आजकल बहुत कुछ बोल रहे हैं कि योगा और mindfulness के बारे में. Mindfulness के लिए बोलते हैं living in the present moment. अगर इस moment पे, if I am speaking to you, अगर आप मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे, तो that is again, और समझेंगे, तो that is again a type of mindfulness. Basically अभी आजकल हम लोग को बहुत मल्टीटास्किंग करने की आदत है कि इसको हमने किया, वीडियो तो ऑफ है, कान में सब सुन रहे हैं, चलते चलते हमने बहुत सारे काम किए, बट मल्टीटास्किंग से हमारे ब्रेन थोड़ा कंफ्यूज होता है, थोड़ा इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं आता. तो अगर हम बच्चों को
अभी मैं कोई वीडियो देख रही थी जिसमें 2nd क्लास के बच्चे को सिखा रहे थे डीप ब्रीदिंग। स्टार बनाओ, जैसे ही स्टार का ऊपर जाता है, टेक अ डीप ब्रीदिंग इनसाइड, जैसे नीचे आता है लीव योर breathe out, then breathe in and then breathe out. So such a simple thing to teach your child to start breathing deeply. And this increases their focus, it calms them down, और इससे हम सेल्फ अवेयर भी होते हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी सांस कैसे बाहर जा रही है, सांस कैसे अंदर आ रही है, हमारे बॉडी मूवमेंट्स को हम समझते हैं। तो योग or mindfulness, it teaches your child to be calm. It increases the focus of your child. So now, before I I conclude, we have 3 positive parenting tips, which is said 3 L's. That is love, limit, and latitude. So love your teenager. Few days before, I was talking to one of my friend, और वो अपने टीनेजर बच्चे को कुछ गुस्सा कर रही थी, या उसको बोल रही थी कि तुम्हारा बैग वहां रख दो और खाना पड़ा हुआ उसको खा लो। मैंने उसको बोला, जब हमारे पास छोटा बच्चा आता है, जब बच्चा नर्सरी में जाता है या फर्स्ट का आता है, तो मम्मा बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही होती है कि हाँ बच्चा आएगा, पता नहीं कितना थका हुआ है, पढ़ाई करके आ रहा है, खाना खाया कि नहीं। तो मदर वेलकम्स द चाइल्ड विद ओपन आर्म, और जैसे ही बच्चा आता है तो हम उसको हग करते हैं और फिर चलो उसके फटाफट शूज सॉक्स उतारने शुरू करते हैं। एंड नाउ व्हेन द चाइल्ड बिकम्स इंडिपेंडेंट, 9th-10th में आया, तो बस जैसे ही वो आया, जल्दी से बैग रखो, खाना लगा है, ट्यूशन पढ़ने जाना है, विल स्टार्ट डिक्टेटिंग देम। उनको हम सिर्फ डिक्टेशन ही देते हैं, हम उनको हग नहीं करते, उनको प्यार नहीं करते। हमारे एक्सप्रेशंस हमेशा टेंस ही होते हैं कि पता नहीं इसका फ्यूचर क्या होगा, ये अगर कम पढ़ेगा तो पता नहीं कितना पीछे हो जाएगा। तो अवॉइड लेक्चरिंग, connect with your teen through acceptance, and always hug your teenager. So this is first L, that is love. Then is limit. हर रिलेशनशिप में एक लक्ष्मण रेखा होनी ही चाहिए। तो टीनेजर्स ऑल्सो नीड अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज एंड गाइडलाइंस। ऐसे कि अगर घर के आसपास हम बाउंड्री बनाते हैं और किसी क्रीपर को, जैसे मनी प्लांट को उसके सहारे कर दे, तो कितना अच्छा और कितनी जल्दी ग्रो करता है। टीनेजर्स ऑल्सो नीड बाउंड्रीज। वो रिस्की बिहेवियर होता है उनका, बट स्टिल दे नीड बाउंड्रीज. So parents have to understand that their child must be looking taller and stronger than them, but their brain is still growing. So they need your guidance, they need your support. So parenting is like a riding horse. You still need to keep control on reins. Consistent enforcement and precise rules, they are needed. And the lesser number of rules, ऐसे rules जो हम भी follow कर सके, so the implementation would be better. And then provide latitude. The Dalai Lama says, give them wings to fly and roots to come back. So teenagers, they are seeking independence and autonomy. I told you. So listen to your teenager and negotiate on healthy choices. कि उसने बोला कि आज मैगी खाना है, तो ठीक है आज खा लो, बट फिर एक हफ्ते तक मैगी मत खाना। तो लिसन टू देम, नेगोशिएट फॉर हेल्दी चॉइसेस। और अगर मैगी खाना है तो चलो ठीक है, वेजिटेबल्स डाल देती मैं उसमें, अपन वो मिक्स करके बढ़िया चाउमीन बना देंगे। तो ठीक है, उनकी बात भी होगी, अपनी बात भी होगी। एंड अबव ऑल, ऑलवेज गिव देम अनकंडीशनल लव। ऑलवेज इमेजिन योर चाइल्ड एज अ इन्फेंट, जिसको हम ढेर सारा प्यार देते थे। So focus on inculcating core values, use their thrill-seeking behavior as a golden opportunity. Life skills are essential for parents. हमको भी अपने communication skills improve करने हैं, हमारी critical और creative thinking को improve करना है. We also need to learn to say no, किस समय ना बोलना है. Comprehensive sexuality education is right for healthy development of each and every student. Sexual offenses, POCSO एक law है, which is, maybe Dr. Tuteja might enlighten us with it. Keep a vigil on their unusual behavior. I said कि कोई भी बच्चे का behavior 2 हफ्ते से ज्यादा अगर हमको unusual लग रहा है, तो we must think about it कि my child is not behaving normally. I need to consult someone.
and use yoga and mindfulness to teach self-control. So children, they need, adolescents, they deserve love. They don't need, they deserve love when they are at their worst behavior, as this helps them to see through difficulties in presence of warmth from a loving parent. And it is said, लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा प्यार जो है बिगाड़ता है. No, too much love never spoils children. They become spoiled when we substitute gifts for our presence. अरे आज मैं नहीं आ रही, ठीक है, वो मैं Zomato से ऑर्डर कर देती हूँ, लड्डू मिल जाएंगे तुमको. And thank you for being an amazing parent. Thank you so much.